गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आ, 2 दिन का ब्रेक दिया था, है ना बच्चों। वो 2 दिन का ब्रेक मैंने इसीलिए दिया था ताकि आप लोग जो शुरू के 2 टॉपिक्स हैं जो मैंने डिलीवर किए वो अच्छे से समझ जाओ। ठीक है बच्चों, क्योंकि उन 2 टॉपिक्स को अंडरस्टैंड किए बगैर, अब गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किए बगैर आगे बढ़ने का कुछ ज़्यादा ज़्यादा फायदा नहीं होना था बच्चों। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जनरलाइज्ड study of sexual reproduction. Sexual reproduction in uh, bryophytes. In bryophytes, unlike the algal group of plants, here the mode of sexual reproduction is a oogamous type. Oogamous type in all bryophytes बच्चों। ठीक है, there is no isogamy, there is no uh, physiological anisogamy, and there is no morphological anisogamy. Rather, all the bryophytes they reproduce sexually through oogamy। ठीक है, और oogamy में क्या होता है बच्चों, है ना, मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले ही बताया था कि what happens in oogamy, in such case the male gamete male gamete called antherozoid, it is very minute structure and it is motile. Why motile? Because it possesses a flagella, and here in bryophytes flagella are of a whiplash type only, whiplash type only, and all the antherozoids are biflagellate structures, are minute, अच्छा यहाँ नहीं लिखा है, biflagellate structures, and the flagellar condition is isoconty, not heteroconty. It is isoconty. Why? Because both the flagella are of same type, that is whiplash type. ठीक है, and that a male gamete is also known as a spermatozoid. So it is called spermatozoid or antherozoid, whereas the female gamete is large, it is massive बच्चों, it is very much large and immotile. It is non-motile because it does not have any flagellar structure. ठीक है, and this female gamete, this large immotile female gamete is called egg or ovum. ठीक है बच्चों, अब इससे ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है ना, मेरे ख्याल में समझ आ चुका है अभी तक, है ना बच्चों। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। ओके, एंथेरोजोइड्स जो मेल गेमीट्स है बच्चों, मेल गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथीरिडियम सिंगुलरली, और प्लूरली इसको बोलते हैं हम एंथीरिडिया। ये ध्यान देना है बच्चों, ठीक है, ये ध्यान देना है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही रहता है सारे ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथीरिडियम, whereas female reproductive structure is called archegonium। अब आगे को हमने इन दोनों का ही डिटेल करना वन बाय वन। पहले हम एंथीरिडियम को पकड़ेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पर हम आर्चिगोनियम का सारा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सो antherozoids, the male gametes called antherozoids or spermatozoids are produced inside male reproductive structure called antheridium, and the female gamete which is called egg or ovum, it is produced inside the female reproductive structure called called archegonium। now एक डिफरेंस बच्चों, शायद मैंने स्लाइड में लिखा नहीं है, इधर बता देता हूं रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द gametes produced। जो एंथीरोजोइड्स है बच्चों, these are produced in abundance, these are numerous antherozoids are produced inside an antheridium, whereas inside archegonium पहले बता दिया था वेंटर पोर्शन में जो वेंटर सेल होगा, वेंटर सेल का जो प्रोटोप्लास्ट होगा, that becomes female gamete। that means per female reproductive structure only one female gamete is produced, whereas numerous biflagellated and slightly coiled
Male gametes are entherozoids or spermatozoids are produced per antheridium. तो नंबर के हिसाब से ये डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। Both reproductive structures, that is antheridia and archegonia, are multicellular and enclosed inside sterile jacket. And this particular character again makes it different from the algal group of plants. Algal group of plants में क्या होता है? The reproductive structures are unicellular or multicellular. Sometimes we can find multicellular structures also. But here in bryophytes, the male reproductive structure called antheridium and the female reproductive structure called archegonium are always multicellular and enclosed inside a sterile jacket. This is very important character bachcho, possessed by or adopted by this bryophytic group of plants, and it makes them different from algal group of plants. Why? Because in algae there is no sterile structure found. ये चतुर्वेदी साहब के लिए मैं स्पेशल संदेश देना चाहता हूं, है ना। उनको मेरा पिछला एक वो रोटी कपड़ा मकान वाला कंसेप्ट बड़ा पसंद आया था, है ना बच्चों। तो चतुर्वेदी साहब, ये जो स्टीराइल जैकेट है बेटू, ये फिर एक कपड़ा मिल गया है सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स को। वाई? टू प्रोटेक्ट दोज एसेंशियल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम डेसिकेटिंग इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। वाई एसेंशियल स्ट्रक्चर्स बच्चों? किस लिए जरूरी है? अच्छा, वाई? बिकॉज these structures enclose very important material called male nucleus and female nucleus. And why? Because this male nucleus and female nucleus is the basis for formation of next generation of its own kind. ठीक है बच्चों, तो ये पहली बार आया है, ठीक है। जैसे ही ब्रायोफाइट्स ने एक्वेटिक एनवायरनमेंट से निकलकर आपका टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पहुंचे हैं, है ना। हम ऐसे बोल सकते हैं अभी अभी पहुंचे हैं। व्हाई? बिकॉज दीज आर अगेन एम्फीबियस मोड है बच्चों, है ना। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, वाटर इज नो डाउट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ब्रायोफाइट्स के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो मैं एक एक करके बताऊंगा, इस लेक्चर में बताऊंगा मैं बच्चों, ठीक है, क्यों जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो ब्रायोफाइट्स में स्टीराइल जैकेट आ गया। ये थोड़ा लंबा खींचा मैंने, 2-3 मिनट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना है। सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स called antheridium and archegonium are multicellular always and enclosed inside sterile jacket structures. ठीक है, और डिटेलिंग फिर आगे आगे एक एक करके हम करते जाएंगे बच्चों, ठीक है। पहले हम सबसे पहले एंथेरिडियम पकड़ेंगे। एंड एंथेरिडियम, it consists of two parts only. However, these two parts, the size, shape, it varies from species to species. मैं आगे कुछ स्लाइड्स दिया हुआ है, वहां पर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। बट बेसिकली इट हैज ओनली टू parts. One is upper part called body, inside which entherozoids are produced, and lower portion called stalk, with the help of which the antheridium is positioned on the gametophytic tissue. क्यों बच्चों? क्योंकि ये एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम दोनों बन कहां रहे हैं? गेमेटोफाइट के ऊपर ही बन रहे हैं ना, गेमेटोफाइट के ऊपर ही बन रहे हैं। तो ये स्टॉक पोर्शन होता है, ये एंथेरिडियम को वेजिटेटिव थैलस के साथ ये चिपका के रखता है, एंकर करके रखता है, ठीक है। तो स्टॉक का ये काम होता है। आगे एक डायग्राम दिया हुआ है, हाँ, अब यहां पर मैं डिटेलिंग करूंगा, ठीक है। यहां मैं कम से कम 5-6 मिनट रुकूंगा। दिस इज द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ male reproductive structure called antheridium. ठीक है बच्चों, it consists of only two parts. One is body and one is stalk. और जैसे पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, the shape of the body plus the size of the body plus the nature of sterile jacket
it varies from species to species, and also the nature of stock varies from species to species in respect of its length. पहले मैं स्टॉक से शुरू करता हूं बच्चों. इन ऑल ब्रायोफाइट्स, अब ध्यान से सुनना बच्चों, प्लीज बी 100% अटेंटिव, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक हो गए, ठीक है. तो मार्केंसी और फिनेरिया दो ही जीनस है हमारे पास, उसमें भी हमने यही पढ़ना है, इसके बाहर नहीं पढ़ना है. हाँ, इतना जरूर है कि उनके फंक्शनल डिटेल्स और स्ट्रक्चरल डिटेल्स को थोड़ा सा हमने थोड़ा और इलोबोरेट करना है, थोड़ा एक स्पेसिफिक वे में पढ़ना है, ठीक है. ये अभी जनरलाइज स्टडी है बच्चों, ठीक है, पूरे ब्रायोफिटिक ग्रुप का. तो जो ये स्टॉक है which may vary in length from species to species. आगे मैंने 6-7 स्लाइड्स रखे हैं बच्चों, उनमें मैं सबको बता दूंगा एग्जांपल के साथ, ठीक है. एंड इट इज द स्ट्रक्चर और इट इज द लोअर पोर्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथीरिडियम which helps to keep this male reproductive structure anchored to the gametophytic tissue. जो ये ग्रीनिश मास मैंने किया है, ये ग्रीन मैंने इसलिए किया है कि ये गेमेटोफाइट का टिश्यू है बच्चों. गेमेटोफिटिक थैलस का एक पोर्शन है जिसके ऊपर ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथीरिडियम उगता है, ठीक है. बट वन एसेंशियल फीचर इज दैट स्टॉक इज ऑलवेज टू सेल वाइड इन द सेंस हम कह सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स, ठीक है. ये हमारा फ्रंट व्यू है, सामने वाला व्यू है, लेकिन अगर इसको हम क्रॉस में देखेंगे तो हमको जो स्टॉक है वो ऐसे नजर आता है बच्चों, 1 2 3 4, है ना, ऐसे कंसिस्टिंग ऑफ 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स, सो दैट चाहे इसको हम फ्रंट से देखें, उसको बैक से देखें, इसको साइड से देखें, कहीं से भी देखें, इट अपीयर्स टू सेल वाइड, it appears two cell wide, it appears two cell wide, it appears two cell wide. So in all bryophytes, in all the species of all the members of bryophytes, stalk is always two cell wide. However, its length varies. इसके बाद अब नहीं बताऊंगा, ठीक है, स्टॉक के बारे में. स्टॉक के बारे में हो गया. Whereas the body, main portion body, it consists of a sterile jacket एंड द फर्टाइल सेल्स. और जो फाइनल जनरेशन है फर्टाइल सेल्स के, इनको एंड्रोसाइट मदर सेल्स बोलते हैं बच्चों. आपके सिलेबस में डेवलपमेंटल स्टेजेस नहीं है तो जानने का जरूरत नहीं है आपको ज्यादा, ठीक है. बस ये समझ लेना कि एंड्रोसाइट मदर सेल्स आर द लास्ट जनरेशन सेल्स व्हाइल प्रोड्यूसिंग दिस बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड्स. मैं डायग्राम से समझा दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है. लेकिन उससे पहले एक हल्का सा जैकेट के बारे में बता देता हूं. जैकेट इज ऑलवेज 1 सेल थिक, और इसको यूनिस्ट्रेटोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं बच्चों, याद रखना है. यूनिस्ट्रेटोज स्ट्रक्चर, यूनिस्ट्रेटोज, ये टर्म भी आगे आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये भी साथ साथ में चलता रहेगा ब्रायोफाइट्स टेडोफाइट्स तक. यूनिस्ट्रेटोज, यूनि मीन्स 1, स्ट्रेटोज मीन्स स्ट्रेटा, एक सेल थिक, ठीक है. So in majority of the members, this sterile jacket of main body of antheridium is 1 cell thick, whereas in some cases, for example, we have an example of porella. In porella, in lower half, this becomes multistratose. The jacket becomes multistratose, whereas it remains unistratose in the upper half. ठीक है, ये पोरेला में है, किसी और जीनस में भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास एक एग्जांपल याद रखने के लिए पोरेला काफी है बच्चों, ठीक है. तो ये हो गया हमारा जैकेट की बात. अब एक और बात है, इन सम हायर मेंबर्स, वन और फ्यू सेल्स मेकिंग दिस स्टीराइल जैकेट एट द टॉप, one or few cells, they store a good quantity of mucilaginous substance, mucilage. अब आप लोग बोलोगे सर ये बार बार बोलते हो आप, एल्गी में म्यूसिलेज है ना, फलाने में म्यूसिलेज है, यहां पर भी म्यूसिलेज है, ये कहां से आता है? ये कहीं से नहीं आता है बच्चों. दीज आर ऑल सिंथेसाइज्ड बाय द सेल्स देमसेल्व्स. ये सेल खुद सिंथेसाइज करते हैं, फिर ये एक्सपोर्ट आउट करते हैं, ठीक है, पासिंग थ्रू
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू एक्सटीरियर, जैसे आप एल्गी के केस में, खासकर प्रोकैरियोट्स के केस में है ना बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गा है, वहां पर बहुत म्यूसिलेज मिलता है। ये विद इन साइटोप्लाज्म सिंथेसाइज होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म के अंदर ही सिंथेसाइज होगा विद इन सेल, एंड दैट इट इज अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्टेड आउट एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अब उसमें ज्यादा नहीं जाना है, यहीं पर बात करते हैं कुछ सेल्स इन हायर मेंबर्स। जैसे आप लोगों का एग्जांपल यहां पर एक फ्यूनेरिया है, जो आपका सिलेबस का सेकंड जीनस है। इन सच केसेस जनरली इन द मेंबर्स ऑफ क्लास ब्रायोप्सिडा, ये फिर बता दूं, ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स में कुछ टिप के सेल्स, एक या दो सेल, ये ज्यादा म्यूसिलेज स्टोर करते हैं। इससे क्या होता है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर, अब याद रखना बच्चों पानी क्यों जरूरत है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर, these cells absorb more water as compared to other cells. As a result, these cells swell up and then break apart, making a passage. For what purpose? For bringing these antherozoids out, or for liberation of antherozoids. ठीक है बच्चों, तो पानी का जरूरत का देखो पहला पॉइंट हो गया, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर डिसेंस ऑफ एंथीरिडियम इन डिफरेंट वेज, इसलिए कि आगे और स्लाइड में दूसरे तरीके भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, जिस तरीके से ये एंथीरिडिया डिहिस होते हैं, टूटते हैं, फॉर लिबरेशन ऑफ एंथीरोजोइड्स। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। और अब लास्ट बचता है हमारा ये अंदर के एंड्रोसाइट मदर सेल्स। क्या होता है बच्चों, ये पहले ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, है ना, हमेशा मैंने क्या बोला था, जीवन की उत्पत्ति सिंगल सेल से होता है। ठीक है, सिंगल सेल से होता है, और एंथीरिडिया जो बनते हैं ज्यादातर सुपरफिशियल सेल से बनते हैं बच्चों। ये जब टाइप स्टडी पढ़ेंगे तभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एनी सुपरफिशियल सेल जिस जगह पे ये बन रहा है, ठीक है, दिस डिवाइड्स एंड इट मेक्स टू सेल स्ट्रक्चर, लोअर सेल इट मेक्स स्टॉक एंड अपर सेल इट मेक्स बॉडी। ठीक है, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस, ये डिवाइड करेगा, लोअर सेल इट विल मेक स्टॉक, ये सेल डिवाइड करता जाएगा, मेनी जनरेशन में डिवीजन करता जाएगा। ठीक है, ये बॉडी धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा, स्टॉक भी कईयों में लंबा होगा, कईयों में छोटा ही रहेगा, वो अलग बात है। ठीक है, और जो लास्ट सेल जनरेशन आता है उनको हम बोलते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल्स। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, एंड्रोसाइट मदर सेल्स इन मेजॉरिटी ऑफ द ब्रायोफाइट्स, दिस इज वन एंड्रोसाइट मदर सेल and it encloses a protoplast, means plasma membrane, enclosing cytoplasm and male nucleus. Each androcyte mother cells divide diagonally. ये फिर से बना देता हूं बच्चों। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट डिवाइड्स बच्चों, इसका सेल वॉल नहीं टूटेगा। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट डिवाइड्स diagonally, and each androcyte mother cell thus produces two triangular protoplast pieces. And finally each of these two triangular protoplast pieces metamorphose into this biflagellated narrow coiled structure called antherozoid। बस इससे ज्यादा नहीं बताना है बच्चों। ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेजेस आप लोगों के पास नहीं है, मुझे हल्का सा एंड्रोसाइट मदर सेल का रोल के बारे में बताना था। ठीक है, अब लास्ट में आता है एंथीरोजोइड्स। यहां पर एक बहुत खास बात है बच्चों, आप लोगों को किताब में दिया होगा, द बॉडी ऑफ एंथीरोजोइड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ब्लीफेरोप्लास्ट पोर्शन टिप पे, दिस इज कंसिडर्ड एंटीरियर एंड ब्लीफेरोप्लास्ट बॉडीज और बेसल बॉडीज बच्चों, ब्लीफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल्स और बेसल बॉडीज फ्रॉम विच एंड दिस फ्लैजेला अराइज। ठीक है, उसके बाद आएगा मेन बॉडी, और जो लाल कलर किया मैंने बच्चों, असल में ये न्यूक्लियस होता है। क्यों? क्योंकि अब एक बात है बच्चों फीमेल गेमीट कॉल्ड एग और ओवम इज लार्ज इन साइज, इट स्टोर्स अ मेल फीमेल न्यूक्लियस, वेयरएज मेल गेमीट इज वेरी माइन्यूट। लेकिन माइन्यूट का मतलब ये नहीं होगा कि बच्चों न्यूक्लियस छोटा होगा, ऐसा इट नेवर हैपेंस। ठीक है, फिर इनकम्पेटिबिलिटी आ जाएगा। व्हाई? क्योंकि स्पेसिफिक लेवल पर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जितना साइज फीमेल न्यूक्लियस का रहता है उतना ही मेल न्यूक्लियस का भी रहेगा। अब ये ध्यान से सुनना है बच्चों,
ठीक है, इसीलिए, और चूंकि मेल गेमीट का साइज बहुत छोटा है, लेकिन मेल न्यूक्लियस को हम छोटा नहीं कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, मेल न्यूक्लियस उतना ही रहेगा। इसीलिए जो एंथेरोजोइड बनता है, इसका मेजर जो पोर्शन है बॉडी का, इट कंप्राइजेस न्यूक्लियस, वेयर एज साइटोप्लाज्म, जो मैंने यहां पर ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, इट इज वेरी स्मॉल एंड इन द फॉर्म ऑफ अ वेसिकल, छोटा सा एक थैलू जैसा नजर आता है एट द एंड, ठीक है। And cytoplasm is very small in male gametes in all bryophytes. Why? Because अगर साइटोप्लाज्म बड़ा होगा, इसके मोटिलिटी में भी फर्क रहेगा, ठीक है। मोर ओवर एंथेरोजोइड का काम बिल्कुल छोटा सा है, इसने लिबरेट होना है यहां से और फटाफट जाके फीमेल गेमीट के साथ फ्यूज कर जाना है, इसके बाद इसका कोई रोल नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए साइटोप्लाज्म छोटा है, साइटोप्लाज्म बहुत छोटा है मेल गेमीट में, एंथेरोजोइड में, हर ब्रायोफाइट में बच्चों, ठीक है। हाँ, जो मेन बॉडी है ये थोड़ा डिफर करता है, कॉइल्ड है, नेरो इलोंगेटेड है, कईयों में कुछ ज्यादा कॉइलिंग होगा, कईयों में थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जैसा दिखेगा, कईयों में एक दो कॉइलिंग होगा। दिस डिपेंड्स अगेन फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। अब नाउ मोस्ट इंटरेस्टिंग बात, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी वेरी हाई इन मेल गेमिट्स साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत हाई होगा बच्चों, छोटे जैसे जो साइटोप्लाज्म है मेल गेमिट का। व्हाई? बिकॉज इट नीड्स large amount of energy, large amount of energy. For what purpose? For its fast motility, so as to ensure its meeting with the female gamete, ठीक है बच्चों। तो साइटोप्लाज्म का साइज हर मेल गेमीट में, ब्रायोफाइट्स के मेल गेमीट में कम होगा, छोटा होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल नंबर आश्चर्यजनक ढंग से बहुत ज्यादा होगा बच्चों, बहुत ज्यादा। तो दिस इज इट, इससे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा अब इस पॉइंट पे, धीरे धीरे आगे बढ़ते बच्चों। ये मैंने इसी को समझाने के लिए खाली रखा था, चलो यही हो गया, ठीक है, ओके। बाकी मैं रीड करता जाऊंगा, सब कुछ बता दिया मैंने, है ना। न्यूमरस बाइफ्लैजिलेटेड, इलोंगेटेड एंड कॉइल्ड एंथेरोजोइड्स आर प्रोड्यूस्ड पर एंथेरिडियम, न्यूमरस। द स्टेराइल जैकेट इज जनरली सिंगल लेयर्ड और वन सेल थिक, or also called unistratos, whereas however in some cases it may become bi or multi-layered in lower half, for example in porella। ये है बच्चों, अब ये स्ट्रक्चर मैं बाद में बताऊंगा, these are called perigonial bracts और leaves, ठीक है। ये जब हम टाइप शुरू करेंगे बच्चों तभी पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज मेन एक्सिस, दिस इज लॉन्ग स्टॉक एंड ऑलवेज टू सेल वाइड, long stalk but always two cell wide in porella. These are androcyte mother cells, these will divide diagonally, each androcyte mother cell divides diagonally and produces two naked protoplast pieces, triangular protoplast pieces, and finally each protoplast piece metamorphoses into that biflagellated male gamete called antherozoid or spermatozoid। but मेन बात, जो स्टीराइल जैकेट है इन लोअर हाफ, इट इज मल्टी स्ट्रेटोस और मल्टी लेयर्ड इन पोरेला, दिस इज इट। इन सम ब्रायोफाइट्स one or few apical cells of main body of antheridium become mucilaginous, बताया था अभी, है ना, become mucilaginous and these are called cap or operculum। नाम बताना भूल गया था, सॉरी कुछ चीजें छूट जाती है बच्चों। कैप और अपरक्यूलम, ठीक है, विच हेल्प्स इन डिहिसेंस ऑफ एंथेरिडियम, फॉर व्हाट पर्पस? टू लिबरेट एंथेरोजोइड्स। और मैंने ये बताया था कि ये कुछ कुछ केसेस में है, क्लास ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स में, जहां तक मैंने देखा है बच्चों, ठीक है, ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स में ये पाए जाते हैं। ब्रायोप्सिडा, द थर्ड क्लास ऑफ ब्रायोफाइटा एज प्रपोज्ड बाय रॉथमेलर एंड प्रॉस्काउर in the year 1951 and 57, third class Bryopsida, commonly called, the members commonly called mosses। तो we have one moss in our syllabus, Funaria, शायद आगे इमेज भी दिया होगा बच्चों, ठीक है। यहां पर अपरक्यूलम है, वन मोर एग्जांपल इज पॉलीट्राइकम, जहां पर जो स्टीराइल जैकेट का टिप का एक या दो सेल
चेंज हो जाते हैं, अपना फंक्शन चेंज कर देते हैं और कहलाते हैं केप और अपरक्यूलम, और वो हेल्प करते हैं एंथीरिडियम के डिहिसेंस में फॉर लिबरेशन ऑफ एंथीरोजोइड्स। दिस इज इट बच्चों, ये दिख रहा है आपको, है ना, ये देखो, ये एंथीरिडियम एम्प्टी हो गया और ये एंथीरोजोइड्स आपका लिबरेट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके टिप का सेल, एक या दो सेल अपरक्यूलम कहलाता है, जो म्यूसिलेजिनस होता है। ठीक है, व्हाट आर दीज पैराफाइसिस, पेरिगोनियल लीव्स, ये हम टाइप में करेंगे, जब टाइप स्टडी करेंगे तब उसमें कर लेंगे। ठीक है, हाँ, अब एक और बात बताना चाहूंगा, जो एंथीरिडियम बनता है बच्चों, या तो वो एंथीरिडियल चेंबर के अंदर बनता है, जो प्रिमिटिव फॉर्म से, ठीक है, एंथीरिडियल चेंबर, कईयों में ये एक्सिलरी होता है, जैसे पिछले एग्जांपल बताया था, है ना, पोरेला का एग्जांपल बताया था, एक्सिलरी इन पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइलोइड के एक्सिल पे ओरिजिनेट होता है फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल सेल। ठीक है, whereas in higher members, or we can say in erect leafy axis, वो गेमिटोफोर्स है ना, वो गेमिटोफिटिक थैलस, जहां पर जो है हमको इरेक्ट लीफी एक्सिस नजर आता है, वहां पर जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं कॉल्ड एंथीरिडियम और आर्चिगोनियम, दे आर फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ मेल एंड फीमेल एक्सिस, और मेल एंड फीमेल ब्रांचेस कॉल्ड मेल हेड, मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच, and the tip being called as male tip or female tip, or entheridial head or archegonial head respectively. So in those cases the entheridia are formed at the tip of that male branch, or archegonia are formed at the tip of those female branches. ठीक है, फिर मैंने एक और बात बताया था कि एट द टिप द लीव्स आर नो डाउट स्पाइरली अरेंज्ड बट कॉम्पैक्टली, फॉर व्हाट पर्पज, ये फिर आगे बता दूंगा। ठीक है, हियर इफ दे आर present at the tip of male branch, these are called perigonial leaves, and if they are present at the tip of female branches and are arranged in a compact manner, those are called pericytial leaves or pericytial bracts. ये बाद में कराएंगे बच्चों, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन जरूरी है, इसलिए मैं जरूरी समझा कि आपको मैं अभी भी बता दूं, ताकि आपके दिमाग में कुछ नए शब्द ये बिठ जाएं। जो एडवांस्ड मेंबर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेंबर्स ऑफ ब्रायोप्सिडा, वहां पर एपिकल डिसेंस होगा बच्चों, छोटा सा पोर्शन ही डिस होता है, जबकि बाकी मेंबर्स में जो आपका स्टीराइल जैकेट है, उसका अपर हाफ पोर्शन व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर इट ब्रेक्स अपार्ट। ठीक है, तो ये डिसेंस का अलग अलग तरीका है, तो इस स्लाइड में मैंने यही दिखाया है। While in others, apical part of sterile jacket breaks into irregular pieces after coming in contact with water. Again बच्चों, water is necessary for dehiscence of antheridium, and thus it is important for liberation of antherozoids too. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बताया पोरेला और स्फेग्नम का। ठीक है, स्फेग्नम हालांकि ये भी क्लास ब्रायोप्सिडा का मेंबर है, ठीक है, लेकिन यहां पर भी इरेगुलरली टूटता है। क्या टूटता है? जो स्टीराइल जैकेट है उसका अपर हाफ, मैं आगे के इमेज से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दिस इज पोरेला, ठीक है, व्हेन इट एब्जॉर्ब्स वाटर, द अपर half of the sterile jacket portion, upper half of the sterile jacket portion, it breaks into irregular pieces, and these coiled biflagellated male gametes called antherozoids are liberated. So we have one example in the form of porella and second example in the form of sphagnum. Now moving to next slide. Antheridia are formed in antheridial chambers. ये मैंने बताया, अभी बताया, ठीक है, either they are formed in antheridial chambers or they are axillary in position, or they are formed at the tip of male branches called antheridial branches, or the tip called male head or antheridial head. यहां पर मैंने एग्जांपल के साथ बताया है बच्चों, ठीक है। एंथरीडियल चैम्बर्स ज्यादातर उन केसेस में बनेंगे, ज्यादातर क्या, मेरे ख्याल में एक्सक्लूसिवली उन केसेस में बनेंगे जहां पर जो गेमिटोफिटिक थैलस है बच्चों, हमारा मेन जो डोमिनेंट थैलस है वो एक थैलोइड स्ट्रक्चर है। ये फिर इशारा कर दिया है, आगे का हिस्सा अगले उसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में। जहां पर भी जो गेमिटोफाइट है आपका थैलोइड बॉडी है,
और हेपेटिक स्ट्रक्चर है, उनमें जो एंथ्रीडियम बनेंगे वो एंथ्रीडियल चेंबर के अंदर बनेंगे बच्चों। ठीक है, आगे का मैं फटाफट रीड कर लेता हूं, फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे। एंथ्रीडिया आर फॉर्म्ड इन एक्सिलरी पोजिशन इन प्रोस्टेट leafy forms as well as some of erect leafy forms, for example sphagnum, porella and frulenia. And antheridia are formed at the tip of male branch or antheridial head in erect phyloid forms which are generally the members of class Bryopsida, for example Funaria, Polytrichum and Pogonatum. और फ्यूनेरिया का एग्जांपल मैंने पिछले स्लाइड में आप लोगों को दिखा दिया था। अब आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।